Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. So, my dear student, I am Munish Yadav, PCT Economics from Suraj School Bhiwadi, again here to discuss with you some important topics from Chapter 11, as we are studying Chapter 11, Theory of Supply. So, almost we have completed about this topic, and our today's topic is along a supply curve and shift in supply curve. So my dear student, as far as movement and shift in demand, so the same thing we will follow here. So look at the things. Movement along a supply curve. Beta, movement means when no change in supply curve. It means supply curve change नहीं होगा. It will move upward और डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड होगा या वो डाउनवर्ड होगा जो मूवमेंट होगी वो. ओके, बट इन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व है इट विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा. अब सबसे पहले आपको जो रिमाइंड करना है, व्हाट इज़ द थिंग, यू मस्ट रिमाइंड द थिंग, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. वंस विल लुक हियर. यस माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. Just remember, there are the 8 points. Px only, beta, this is only the factor which is responsible for movement, क्योंकि ओन प्राइस में चेंज होने से मूवमेंट होती है. ओके, क्लियर और नॉट. और मूवमेंट के दो पार्ट हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर. अब इस Px को छोड़ने के बाद इसको आप अलग कर ले. बाकी जितने भी फैक्टर्स है ऑल आर अदर फैक्टर्स, सारे अदर फैक्टर्स है. पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. एन एफ, नंबर ऑफ फर्म्स. जी, गोल ऑफ द फर्म. पी एफ, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स. टी, टेक्नोलॉजी. ई एक्स आपका स्टैंड फॉर द बिजनेस एक्सपेक्टेशन. जी पी, इट मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ओके, सो ऑल आर द अदर फैक्टर्स. तो जब भी शिफ्ट होगा तो ऑल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. तो एक बार में एक ही चीज़ चेंज होगी. व्हेन द पी एक्स विल चेंज, जब प्राइस चेंज होगा तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे. और व्हेन अदर फैक्टर्स विल चेंज, जब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे तो प्राइस कांस्टेंट होगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. what we are going to study, we are going to study movement. So my dear student, movement means movement along a supply curve refers to extension or contraction of supply in response to change in own price of the commodity. It means px, own price change होने से जो भी extension या contraction होगा that is movement. Other determinants of supply remaining constant. बाकी जितने भी determinants है वो क्या होंगे, constant होंगे. Clear? And what about shift? Shift in supply curve refers to situation of increase or decrease in quantity supplied. या तो increase होगी या decrease. It means forward और backward. Okay. And own price of the commodity will constant. इसमें own price जो है वो constant होगा. Done? Yes. Next, movement of supply curve. Yes बेटा, movement along a supply curve. तो movement has two part, extension और contraction of supply, और it is caused by change in own price. सिर्फ own price की वजह से ये change होता है. So now with the table we will study here. Yes. So first, when the price is 1, quantity supplied is 1. When the price rise to 5, प्राइस 5 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीज टू 5, ये भी 5 हो गई. दिस इज एक्सटेंशन, क्योंकि आपको पता है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशन होता है. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाइज ऑल्सो इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाइज ऑल्सो डिक्रीजेज. ओके, सो इट मीन्स दिस इज द एक्सटेंशन. 1 यूनिट टू 5 यूनिट सप्लाई इज एक्सटेंड. क्लियर. सो नेक्स्ट इज contraction. Or what happened in contraction? When the price is 5, quantity supplied is 5. This is given. When price decreases to 1, supply is also decreases. It means अब हम 5 से कहाँ पर आए, 1 पर. तो it means downward आए. Clear? So it means जो ये movement है वो downward है, decreasing. So आप इसको बोलेंगे contraction of supply. So यहाँ सिर्फ own price change हो रहा है, other factors हमने constant लिए. Clear? Now shift in supply curve, increase and decrease in supply. So shift in supply curve has two part. One is increasing, second is decreasing. So my dear student, look at here. Price of ice cream is 10, quantity supply is 20. The price next time is also remain constant 10, but supply quantity supplied increase to 30. प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, बट क्वांटिटी सप्लाई 20 से 30 हो गई. दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई.
तो प्राइस इसमें कांस्टेंट होगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है जो आप देख सकते हो। ओके, गिवन सप्लाई S1 और न्यू सप्लाई कर्व S2, इट मीन्स ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई, दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज कब होगी सप्लाई? व्हेन अदर फैक्टर्स आर फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल सब हमें कम रेट पर मिल रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग गुड या प्रोडक्ट। जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट है उनके प्राइस कम हो गए तो हम भी अपनी सेल फटाफट से बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ हमारे सारे कंज्यूमर्स जो हैं, सारे कस्टमर्स जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी और सप्लाई भी ज़्यादा होगी। इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, इट मीन्स इन फ्यूचर देर इज़ अ एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। शिफ्ट इन गोल्स ऑफ फर्म्स, फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो गया है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन जब भी किसी फर्म का गोल होता है तो वो बेटा एनी प्राइस अवेलेबल एट द मार्केट दे विल सेल मोर एंड मोर, किसी भी प्राइस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं। ओके, डिक्रीज इन द टैक्स रेट, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, सब्सिडीज़ मिल रही, इट मीन्स प्रोडक्शन टैक्स कम हो गया है, तो अब प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इट मीन्स ऑल अदर फैक्टर्स आर फेवरेबल, सारे के सारे फैक्टर्स जब फेवरेबल होंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली सेम प्राइस पर इंक्रीज होगी। क्लियर? नाउ डिक्रीज इन सप्लाई अगर हम बात करें, सो सेम प्राइस पर अगर सप्लाई कम हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड, तो डिक्रीज इन सप्लाई। लुक एट द टेबल, प्राइस 10 सेम, quantity supply is 30, now price is again same but quantity supply decrease to 20, ये 30 से कितनी हो गई 20 हो गई, ये डिक्रीज है। अब आप इसको डायग्राम में भी सेम दिखा सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट। यस, लुक एट हियर, प्राइस इज कांस्टेंट, दिस इज द गिवन सप्लाई कर्व एंड दिस इज न्यू सप्लाई कर्व, व्हेन सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इज डिक्रीज, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? सो वेरी सिंपल, इफ़ अदर फैक्टर्स आर, बिकॉज प्राइस तो सेम है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सप्लाई जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो प्राइस कांस्टेंट होगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा। अदर फैक्टर्स अगर फेवरेबल है तो इंक्रीज और अदर फैक्टर्स आर अनफेवरेबल देन सप्लाई विल डिक्रीज। क्लियर? सो यहाँ देखिए अनफेवरेबल क्या क्या है। यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हम बनाएंगे कम, सप्लाई भी कम होगी। इंक्रीज इन द फैक्टर प्राइस, लैंड, लेबर, कैपिटल सब आपको बहुत हाई रेट पर मार्केट में अवेलेबल है, दैन इन दैट केस आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे, सप्लाई भी कम करोगे। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, इट मीन्स जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस है वो कम हो गए तो आप भी थोड़े टाइम के लिए अपनी सप्लाई कम कर दोगे। ओके, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम हो गई, ये कम होने से ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कम होगी, सेल भी कम होगी। इरोजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में डिमांड नहीं है, कम है, सो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, तो इट मीन्स सप्लाई भी कम होगी। शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म, अगर फर्म का जो गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन में तो किसी भी प्राइस पर एक प्रोड्यूसर सेलर सेल करेगा, कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होता है देन द फर्म विल सेल एट हाई प्राइस ओनली, सिर्फ हाई प्राइस पर सेल करेगी, तो अगर लो प्राइस हुआ मार्केट में सो वो सेल नहीं करेगी। इंक्रीज इन टैक्सेशन, एक्साइज ड्यूटी, इट मीन्स प्रोडक्शन टैक्स बढ़ गया है तो प्रोड्यूसर कम बनाएगा और सप्लाई भी कम करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल आर द कॉजेज ऑफ decrease in supply. So I hope you understand today's point, what is movement, what is extension, contraction, what is shift, increase in supply and decrease in supply, and along with their causes. So do all the questions in your fair notebook and learn accordingly. God bless you.